Hi guys, welcome back to the e-learner and welcome to the playlist of operating system. So, अभी तक हमने operating system में बहुत सी चीजें cover कर ली हैं. We have covered that what's the operating system is, what are the characteristics of operating system, what are the functions of operating system, different types of operating system with their functionalities, and we also discussed the process, what are the process, what are the thread, what are process completion, process termination, and what the essential thing that a process contain, that is process control block. And we also discussed how we allocate CPU to different processes, what are CPU schedulings, what are different algorithms of CPU schedulings, how they work, how actually the CPU is assigning to a particular process, how can we solve the numericals on CPU scheduling. ओके सो अभी तक हमने ये सब कवर कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन सीपीयू स्केड्यूलिंग वो हम पूरा कवर कर चुके हैं अभी तक. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट डेडलॉक. Okay, so what's the deadlock is? What's the term deadlock is? So deadlock is the thing that we cover in the today's video. Okay, so let's get started. So what's the thing basically? See, in a multi-programming environment, there are several processes that are running. Okay, in CPU scheduling also I have tell you that there are multiple processes. Okay, and how can we assign CPU to different processes? ये हमने सीखा. So क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में देयर आर वेरियस प्रोसेस इन द सिस्टम दैट आर कंपीटिंग फॉर द वेरियस रिसोर्सेज, कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, मुझे ये रिसोर्स चाहिए. आप सीपीयू शेड्यूलिंग में ही देख लो, मल्टीपल प्रोसेसेस थी हमारे पास रेडी क्यू में, दैट आर कंपीटिंग फॉर व्हाट, दैट आर कंपीटिंग फॉर सीपीयू. ओके, अब जरूरी नहीं वो रिसोर्स सीपीयू हो, रिसोर्स कैन बी सीपीयू, रिसोर्स कैन बी आईओ डिवाइसेस, एनीथिंग. ओके, सो हाउ कैन वी मतलब कि होता क्या है इन रिसोर्स प्रोसेसेस में that are competing for the finite set of resources. रिसोर्स तो किसी एक ही प्रोसेस को मिल पाता है. ओके, जिस प्रोसेस को रिसोर्स मिलता है वो उसका एग्जीक्यूशन होने लगता है. बाकी जिन प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिलता वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है, यानी कि वो रिसोर्स के लिए क्या करती है, वेट करती है. अब ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में गई हो, जो रिसोर्स के लिए वेट कर रही हो, उसे आगे जाके कभी वो रिसोर्स मिला ही नहीं. और वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो रिसोर्स जो उस प्रोसेस को चाहिए था वो किसी अनदर प्रोसेस ने होल्ड करके रखा था. ओके, तो इससे क्या होगा, वो प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए स्टार्व कर जाएगी, और वो प्रोसेस किस कंडीशन में चली जाएगी, उसके स्टारवेशन एंड हो जाएगा, उस प्रोसेस का स्टार्व होने लगेगी वो प्रोसेस. और दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ डेडलॉक. ओके, यानी कि कोई एक प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस रिसोर्स को इसीलिए यूज नहीं कर पा रही है बिकॉज रिसोर्स इज होल्डिंग बाय सम अनदर प्रोसेस, यानी कि कोई दूसरी प्रोसेस एक दूसरी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन से रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है उसके एग्जीक्यूशन को, क्योंकि वो उसे रिसोर्स नहीं दे पा रही. सो यही यहाँ पे लिखा है कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट देयर आर सेवरल प्रोसेसेस दैट आर कंपीटिंग फॉर अ फाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, रिसोर्स कैन बी सीपीयू डिवाइस, resource can be IO device, resource can be anything. Okay, process request resources if resource is available, if resource is available, resource available होता है तो that can be allocated to a particular process. Otherwise, if resource is not available, then process will enter into which state, process will enter into the waiting state. Okay, it will happen that process जो waiting state में है आगे जाके वो कभी भी resource उसे मिले ही ना. ठीक है, because some another process is basically holding that particular resource, and this is basically the condition of deadlock. So altogether deadlock hota kya hai? Deadlock is basically a situation in which two processes that wanting a same resource will preventing each other from getting that particular resource, and which will in turn preventing their executions. कि मान लो दो प्रोसेसेस हैं that wanting the same resource, तो वो प्रोसेस क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रिवेंट करेंगी उस रिसोर्स को लेने से, और इन टर्न क्या होगा, दोनों में से किसी का एग्जीक्यूशन नहीं होगा. और दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ डेडलॉक. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल ओवर है. See, here is resource A. Resource A is basically holding what? Resource A is basically holding by what? Process 1. Process 1 is basically holding resource A. Okay, process 1 is holding resource A, and here process 2 is basically holding resource B. Okay, process 1 ने resource A को hold कर रखा है, process 2 ने resource B को hold कर रखा है. अब process 1 ने
रिसोर्स ए को होल्ड कर रखा है एंड इट्स स्टिल सेंडिंग रिक्वेस्ट टू रिसोर्स बी फॉर इट्स एलोकेशन। ओके, जिसे प्रोसेस 2 ने होल्ड करके रखा है, और सिमिलरली प्रोसेस 2 ने रिसोर्स बी को होल्ड करके रखा है एंड स्टिल सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स ए फॉर इट्स एलोकेशन। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, ये डेडलॉक की कंडीशन बना देगा और सीपीयू को और सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि इस सिनेरियो में क्या करना है, क्योंकि प्रोसेस 1 ने रिसोर्स ए को पहले से ही होल्ड करके रखा हुआ है। अब प्रोसेस 2 उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, बट प्रोसेस 1 रिसोर्स ए को छोड़ नहीं रहा। तो इस केस में क्या होगा, प्रोसेस 2 को रिसोर्स ए नहीं मिलेगा। ओके, प्रोसेस 2 विल वेट फॉर द रिसोर्स ए। सिमिलरली प्रोसेस 1 भी रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स बी की, जिसको होल्ड करके रख रखा है आपके प्रोसेस 2 ने। सो इन सेम वे प्रोसेस 1 को भी रिसोर्स बी एलोकेट नहीं होगा। So this is basically the condition of deadlock, that two processes preventing each other from getting the resources. Okay, and in turn क्या कर रही है, they are preventing each other from going to execute. Okay, so this is basically the condition of deadlock. I hope you guys understand it. Now let's understand what are the necessary conditions for deadlocks. That what are the conditions that create that create deadlock basically. So first is the mutual exclusion condition. Now let's understand what's the mutual exclusion means. Mutual exclusion means that a resource can be utilized by only a single process at a time. It means एक resource से एक time पे सिर्फ एक process के द्वारा use किया जाएगा. For example, you can take a printer. प्रिंटर से आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस प्रिंटर से रिसोर्स मतलब प्रिंटर का रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकती है। ठीक है, 2 प्रोसेसेस एक साथ प्रिंटर यूज नहीं कर सकती। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन डेडलॉक क्रिएट करती है। कैसे? अगर प्रोसेस 1 जो है उसे भी प्रिंटर की जरूरत है और प्रोसेस 2 को भी प्रिंटर की जरूरत है। ओके, अब दे आर वांटिंग सेम रिसोर्स बट दे आर प्रिवेंटिंग ईच अदर फ्रॉम गेटिंग द रिसोर्स। So it will create a condition of what? It will create condition of deadlock. Okay? कि वो दोनों एक दूसरे को prevent कर रहे हैं from getting a printer. So it will create condition of deadlock. Now the second condition is hold and wait condition, which we see in the example above. Hold and wait condition means a process is already holding a particular resource and still sending request for the allocation of another resource. कि उसने एक resource पहले से ही hold करके रख रखा है and still it's sending request for the allocation of another resource. तो ये condition भी deadlock को arise करती है। Okay? कि आपने पहले से एक रिसोर्स होल्ड कर रखा है, आप एक और नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो ये भी डेडलॉक की कंडीशन को क्रिएट करता है। Now third is no preemption condition. No preemption means, I hope you guys know that preemption का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम इतना आगे तो आ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में कि you have to know that what's the meaning of preemption. Preemption means रिसोर्स को फोर्सफुली छीनना। ओके, सो इसमें बोला नो प्रियम्पशन कंडीशन। प्रियम्पशन की कोई कंडीशन नहीं होगी, यानी कि यू कैन नॉट टेक रिसोर्स फोर्सिबली फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कि आप किसी प्रोसेस से फोर्सिबली रिसोर्स को नहीं छीन सकते। ठीक है, यू कैन ओनली रिसोर्स कैन ओनली रिलीज व्हेन अ प्रोसेस वांटेड, यानी कि जब प्रोसेस या तो टर्मिनेट हो जाए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, या प्रोसेस नो लॉन्गर नीड दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, तब वो रिसोर्स को रिलीज कर देगी। अनलेस अनटिल आप रिसोर्स प्रोसेस से फोर्सिबली रिमूव नहीं कर सकते हो। ओके, सो दिस इज बेसिकली नो प्रियम्पशन कंडीशन जो कि डेडलॉक को अराइज करती है। ठीक है, नाउ फोर्थ कंडीशन इज सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर वेट कंडीशन क्या होती है कि 2 और मोर प्रोसेसेस जो होती हैं वो सर्कुलर चेन में रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही होती है। अब सर्कुलर चेन में रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही होती है, इससे क्या मतलब है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे, कि जैसे मेरी प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है और प्रोसेस P3 है। P1 प्रोसेस ने R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। P1 process is having a R1 resource. Similarly, P2 process is having R2 resource, and P3 process is holding R3 resource. Okay. Now circular wait की condition कब arise होगी, जब process 1 send करेगा request for the allocation of R2, यानी कि process 1 क्या कह रहा है कि मुझे R2 का allocation दो।
ओके, विच इज होल्ड बाय P2, जिसको P2 ने होल्ड करके रखा है, तो R2 इसको नहीं मिल पाएगा। सिमिलरली प्रोसेस 2 कह रहा है मुझे R3 का एलोकेशन दो, विच इज होल्ड बाय P3, and P3 want allocation of what? P3 want allocation of R1C. So this will arise a condition of circular wait condition, and it will in turn arise deadlock. Okay, it means circular chain में processes resources की request कर रही हैं. Okay, P1 process R2 resource की request कर रही है. Okay, P2 process R3 resource की request कर रही है, and P3 in turn आपकी request कर रही है R1 की. So this is what we call circular wait condition, which in turn arise to the condition of deadlock. Okay, so we have covered all the conditions that may arise to the possibility of a deadlock. So in this is for the today's videos, guys. In the next video we will discuss about how can we eliminate these condition of deadlock, and in turn reduce the possibility of deadlock in a particular system. Okay, till then, if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe. Okay, thank you.